Dear student, welcome you to the new session in Geography, the next level. Today I will discuss about the national test. Today I will discuss about CUET 2025. So today CUET, that means National Testing Agency, already announced for 2025 CUET test. Okay, so from today you can register or you can apply this current year 2025 for the admission of undergraduate program in central universities or different state and deemed universities. Okay, so you can see here already press release, you can see here already admission advertisement already published. So 1st March 2025, this is the public notice. You can see here, that means those who are appearing this year board examination 2025, you can start apply from today. Every year CUET, that means Common University Entrance Test admission process started during your examination. So you can see here National Testing Agency public notice 1st March 2025 inviting online application for the Common University Entrance Test. Okay, from this video link below I have already attached this PDF file. You can see this PDF file after video also, and from the next tutorial I will show you how to apply 2025 CUET step by step. Watching my the next tutorial, you can easily, without any mistake, you can fill your CUET examination form for the 2025 for undergraduate level. Okay, let discuss today about the CUET 2025. So this CUET basically is a examination that is all India level examinations. The all student who actually appear this year, that means all the state board student as well as the central board CBSE student can appear this year CUET, that means 2025. So यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि if you are a student in class 12, then you can appear this examination, and on the basis of your score on CUET, you can choose or you can take admission the reputed university in our India, from the Delhi University to the Banaras Hindu University. So each and every reputed institution you can take admission by the after the qualifying the CUET test. Okay, so all these science, arts and commerce stream student can appear this CUET 2025. Okay, so all the student keep watch my video. So let's explain this 2025 CUET. Okay, so you can see here the CUET, this is undergraduate scheme, single window opportunity of the student for the admission of central university as well as the state and private university also all over the India. मतलब इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटी है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो CUET होने वाला है दिस ईयर, उसका अंडर में जितना भी कॉलेज है, जितना भी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द्वारा जो भी प्रोसीड्योर है वहाँ पे इसी एग्ज़ाम का थ्रू में एडमिशन लिया जा सकता है. ओके, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्लियरली लिखा है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है CBT. जैसे कि you all are appearing this year board examination by the help of pen paper test, but when you going to appear this CUET, you should appear computer based test. ओके, सो आपको कंप्यूटर में जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा, आपका सेंटर सिलेक्ट होगा, जहाँ पे सेंटर होगा वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. दैट मीन्स नियर बाई जो भी सेंटर है वहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. बेसिकली ये जो CBT होता है लोकल और नियर बाई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और यू कैन से जो क्लास 1 सिटी है वहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ये एग्ज़ाम होता है.
तो एवरीथिंग यू विल गेट व्हेन यू विल अप्लाई। ओके, सो इसका बाद देखिए ये जो टेबल है, दिस टेबल गिव यू द डिटेल्स about the application process, timing, etc. Okay, so first one is the online submission of application form, that means कब से start होने वाला है। you can see at the 1st March, मतलब आज से शुरू हो गया है और ख़त्म कब होने वाला है 22 मार्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट डेट तक हम इंतज़ार नहीं कर सकता है, हमें पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब पहले ही हमें ये जो CUET है इसको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो होता है कि कम फास्ट सर्विस जैसा भी होता है, मतलब अगर आपका नज़दीक वाला जो CUET सेंटर है, अगर वहाँ पे अगर आपने पहले अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे पहले है, मतलब सेंटर आपको मिल गया। लेकिन अगर जो सेंटर है, अगर सोचिए कि उससे ज़्यादा अगर किसी ने अप्लाई कर दिया, हो सकता है कि आपका जो पहले वाला जो आपने सेंटर चूज़ किया, ये भी हो सकता है कि वो सेंटर में आपको एडमिशन टेस्ट मतलब सीटिंग अरेंजमेंट नहीं भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यू शुड अप्लाई CUET एज सुन एज पॉसिबल। तो लास्ट डेट हमें याद रखना है कि 22 मार्च 2025। Then last date of successful transaction, that means we know that for the admission test we should provide the minimal charge for the examination, and it will be the 23rd March up to 11:50 PM. Okay, then correction in particular, अगर कोई मिस्टेक होता है एप्लीकेशन में, उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रावधान है कि 24 मार्च टू 26 मार्च तक आप कोई भी अगर कोई गलती हुआ है, यू कैन करेक्ट इट। ओके, देन अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, दैट मीन्स द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। when you register, when you apply, you will get a acknowledgement number or registration number. By using that number you can let know the your examination center. Then downloading the admit card from NTA website. सो जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो वेबसाइट है, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, एंड इट विल नोटिफाई यू बाय मोबाइल फोन और बाय द ईमेल ID। ओके, देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एक प्रोबेबल डेट दिया गया है कि 8 मई टू 1 जून का अंदर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन होने वाला है। सो हियर आई वांट टू मेंशन अदर थिंग कि योर एग्जामिनेशन मे बी कैन रन 1, 2, 3, 4, 5, 6 days also. That means how many subject you select for your entrance test. According to this, your examination date may be multiple. That means if you are from the science background, you want to take admission in physics, chemistry. So if you select the physics as well as chemistry, it may be for this physics there will be separate date, for the chemistry there will be separate date. Similarly, if you are from this arts background, so if you want to apply in geography and history, so maybe geography will separate date as well as the history will be the another date. So you should appear examination multiple time if you choose the multiple subject. Clear? Then the display of recorded response and the provisional answers key. सो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसका बाद प्रोविजनल आंसर्स की भी दिया जाता है NTA द्वारा, वो भी आपको जो NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, सो वो मैं जैसे कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर दी 2025 इज लाइव। सो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगेन कम बैक टू द एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे 3rd नंबर में लिखा है कि द डिटेल ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और जो भी यूनिवर्सिटी है वो सब कुछ मिलेगा कहाँ पे कि आर अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट एज वेल एज द NTA, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो खुद का वेबसाइट है उसमें भी मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का होने वाला है, उसका साथ साथ
पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या है ना है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो CUET होने वाला है 2025 का, वो टोटल 13 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में हो रहा है। जो मेजर लैंग्वेज है उसमें 13 लैंग्वेज है। उसमें है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सो ये जो 13 लैंग्वेज ग्रुप है, इसी लैंग्वेज ग्रुप में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप आसाम से है तो आसामीज लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, अगर आप बंगाल से बंगाली लैंग्वेज में दे सकते हैं, अगर आप गुजरात से है तो गुजराती लैंग्वेज से भी दे सकता है। तो ऐसे 13 लैंग्वेज है जहाँ पे आप दे सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू पिक प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आएगा उसको बोला गया है कि NTA का जो वेबसाइट है उसको आपको देखना चाहिए। अभी आता है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन द एडमिशन द एप्लीकेशन पोर्टल में। यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन करना है वो ओनली ऑनलाइन मोड में ही करना है, मतलब हम इसमें ऑफलाइन मोड में नहीं कर सकता है। और दैट विल बी बेस्ड ऑन द वेबसाइट हेयर। ओके, इफ आई विल क्लिक हेयर देन इट विल गो टू द वेबसाइट जहाँ पे हम एडमिशन प्रोसेस मतलब द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फ्रॉम इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मतलब सोचिए कि अगर मैं ऑनलाइन में नहीं किया तो और दूसरा कोई मोड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, with this the second point is only one application is to be submitted by a candidate। यह पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम एप्लीकेशन करने जाएंगे सो इट शुड बी ओनली वन फॉर वन कैंडिडेट। मतलब अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरा नाम में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा किया तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान देना है। You can see here, under no circumstances candidate will be allowed to fill more than one application। So हमें ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करना है। हम 2 एप्लीकेशन मेरा नाम में नहीं कर सकता है। Then third point, candidate must strictly follow the instruction given in the information bulletin। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। उसका बाद आता है कि हमें अगर एप्लीकेशन करना है तो हमें क्या चाहिए। सो एप्लीकेशन का शुरू होने का पहले हमें 2 चीज़ चाहिए, एक होता है ईमेल एड्रेस, दूसरा होता है मोबाइल नंबर। ये 2 चीज़ बहुत मैंडेटरी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज वट एवर कम्युनिकेशन विल डू इन फ्यूचर फ्रॉम द NTA with you, that should be communicated only within by via email and mobile phone। So the email ID and mobile phone is very important। You should keep update your email ID and mobile phone। If you do not have any email ID you should create, and it should be maintained properly, because all communication will do by this email ID and mobile number। okay, ऑन दी अदर एंड द लास्ट यहाँ पे लिखा है अगर कुछ क्वेरी है कि अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ किसी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी आपका आप फीडबैक भेज सकता है। ठीक है, सो कुल मिला के क्या हुआ, यह है दिस ईयर का जो NTA होने वाला है उसका जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू हुआ है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है, इसमें कुछ इस तरह का सही इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो मैं अभी देने वाला हूँ कुछ टाइम बाद कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इजीली CUET and all video I will explain step by step। The next video I will explain the step by step the process, how to apply, how to register yourself for the CUET। Then I will also explain the syllabus, the exam procedure, how we can apply, everything I will discuss। लेट वॉच एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, CUET का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है कैसे करें वो मैं दिखाऊंगा। सो कीप सब्सक्राइब माई चैनल and follow my channel। I will in the next tutorial I will show how to register, how to apply CUET for 2025।